تم کنارہ کشی نہ کرنا ورنہ باطل چیزوں کی پیروی کرنے لگو گے جو نہ فائدہ پہنچا سکتی ہیں نہ رہائی دے سکتی ہیں، اس لیے کہ وہ سب باطل ہیں۔ خدائے قدوس کے زندہ جلالی بابرکت پر فضل نام میں ایک بار پھر آپ سب کو سلام۔ میرا نام ایسٹر ہارون ہے اور میں ہر روز خدا کا زندہ کلام لے کر آپ کے سامنے آتی ہوں، اور ہم مل کر خدا کے پاک کلام کی تلاوت بھی کرتے ہیں، اور ہر روز ایک چیپٹر ہم نئے عہد نامہ میں سے اور 2 چیپٹرز پرانے عہد نامہ میں سے پڑھتے ہیں، اور ہم 365 دنوں میں پیدائش سے لے کے مکاشفہ کی کتاب تک ساری کی ساری بائبل مقدس کو مکمل طور پر پڑھ سکیں۔ تھاٹ آف دا ڈے جو میں آج آپ کے ساتھ بانٹنا چاہتی ہوں وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ خدا کا پاک کلام بڑی صفائی کے ساتھ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ خداوند کی پیروی سے کنارہ کشی نہ کرو، بلکہ اپنے سارے دل سے خداوند کی پرستش کرو۔ تم کنارہ کشی نہ کرنا ورنہ باطل چیزوں کی پیروی کرنے لگو گے جو نہ فائدہ پہنچا سکتی ہیں نہ رہائی دے سکتی ہیں، اس لیے کہ وہ سب باطل ہے۔ اور یہ لفظ باطل مجھے یاد دلاتا ہے ایک اور کتاب میں سے ایک اور مصنف کے اور ایک اور خدا کے خادم کی، بادشاہ سلیمان کی حکمت ساری دنیا میں مشہور ہے اور رہتی دنیا تک مشہور رہے گی۔ آئیے اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں اس کے بارے میں۔ اور صرف اس کی پہلی آیت میں آپ کے سامنے کوٹ کرنے لگی ہوں، اور خدا کے پاک کلام میں وائز کی کتاب اس کے پہلے باب میں لکھا ہے، شاہ یروشلم داؤد کے بیٹے وائز کی باتیں باطل ہی باطل۔ وائز کہتا ہے باطل ہی باطل، سب کچھ باطل۔ دنیا کا مشہور زمانہ مفکر اپنے ذاتی تجربہ سے ہمیں یہ بتاتا ہے کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہے وہ سب کچھ باطل ہے، بلکہ باطل ہی باطل ہے اور سب کچھ باطل ہے۔ میں وائز یروشلم میں بنی اسرائیل کا بادشاہ تھا، اور میں نے اپنا دل لگایا کہ جو کچھ آسمان کے نیچے کیا جاتا ہے اس سب کی تفتیش و تحقیق کروں۔ اور جب اس تفتیش اور تحقیق کے اس سارے مرحلے میں سے سلیمان بادشاہ گزرتا ہے تو آخر میں اس کو پتہ کیا چلتا ہے، اینڈ ریزلٹ جس پر وہ پہنچتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے کہ دیکھو یہ سب کچھ بتلان اور ہوا کی چران ہے۔ اور جیسا کہ میں بار بار سلیمان بادشاہ کی حکمت اور دانش اور اس کے مفکرانہ غور و فکر اور انداز بیاں کے بارے میں ذکر کر رہی ہوں بار بار، تو خدا کے پاک کلام میں خود اس مفکر کا اپنا ذاتی تجربہ یہ بیان کرتا ہے کہ جب میں نے حکمت کے جاننے اور حماقت و جہالت کے سمجھنے پر دل لگایا تو معلوم کیا کہ یہ بھی ہوا کی چران ہے، کیونکہ بہت حکمت میں بہت غم ہے اور علم میں ترقی دکھ کی فراوانی ہے۔ کوئی بھی چیز جو حد سے زیادہ زندگی میں بڑھ جاتی ہے وہ ہمیشہ غم اور دکھ اور تکلیف کا باعث بنتی ہے، اور سب کچھ باطل ہے۔ جتنا بھی نام بنا لیں، جتنی بھی دولت اکٹھی کر لیں، جو بھی آپ ڈگریز پہ ڈگریز لے کے اکٹھی کر لیں، جو کچھ بھی آپ کر لیں، خدا کی ذات کے باہر جو کچھ بھی ہے وہ بے سکونی ہے، باطل ہے، اور کسی بھی طرح سے پیسفل لائف آپ کو عطا نہیں کرتی ہے، چاہے آپ جو بھی زندگی میں اچیو کر لیں۔ کیونکہ خود وائز کی کتاب میں وائز کا یہ بیان ہے، داؤد کے بیٹے سلیمان کا یہ بیان ہے، اس کے اپنے ذاتی تجربہ سے، اس کے اپنے منہ کی یہ باتیں ہیں کہ سب کچھ باطل ہے۔ دنیا کی چیزیں، دنیا کے کام، دنیا کی ڈگریز، دنیا کے بڑی سے بڑی اچیومنٹ ہمیں وہ سکون عطا نہیں کر سکتی ہیں جو خدا میں رہ کر سکون اور اطمینان ہمیں حاصل ہو۔ صرف ایک ہی ذات ہے جو اٹل ہے، جو لا تبدیل ہے، اور وہ خدا کی ذات ہے۔ اس کے منہ کا کلام ہے جو اٹل ہے، لا تبدیل ہے، اور وہ اپنے کلام کو پورا کرنے کے لیے اس کے پیچھے کھڑا رہتا ہے جب تک کہ وہ پورا نہ ہو جائے۔ may God bless you۔ خداوند کی ذات پہ بھروسہ کیجئے، دنیا کی باتیں، دنیا کی چیزیں، باطل چیزوں کی پیروی نہ کیجئے بلکہ خدا کی پیروی کیجئے۔ آمین۔ خدا کے پاک کلام میں سے دیکھیں گے دوسرا تسلنیکیوں اس کا 2 باب۔ اے بھائیو، ہم اپنے خداوند یسوع مسیح کے آنے اور اس کے پاس اپنے جمع ہونے کی بابت تم سے درخواست کرتے ہیں کہ کسی روح یا کلام یا خط سے جو گویا ہماری طرف سے ہو، یہ سمجھ کر کہ خداوند کا دن
आ पहुंचा है, तुम्हारी अकल दफातन परेशान ना हो जाए और ना तुम घबराओ, किसी तरह से किसी के फरेब में ना आना, क्योंकि वो दिन नहीं आएगा जब तक कि पहले बरगश्तगी ना हो और वो गुनाह का शख्स यानी हलाकत का फर्जंद जाहिर ना हो। जो मुखालफत करता है और हर एक से जो खुदा या माबूद कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि वो खुदा के मकदस में बैठकर अपने आप को खुदा जाहिर करता है। क्या तुम्हें याद नहीं कि जब मैं तुम्हारे पास था तो तुमसे ये बातें कहा करता था? अब जो चीज उसे रोक रही है ताकि वो अपने खास वक्त पर जाहिर हो, उसको तुम जानते हो, क्योंकि बेदीनी का भेद तो अब भी तासीर करता जाता है, मगर अब एक रोकने वाला है और जब तक कि वो दूर ना किया जाए रोके रहेगा। उस वक्त वो बेदीन जाहिर होगा जिसे खुदावंद यस्सु अपने मुंह की फूंक से हलाक और अपनी आमद की तजल्ली से नेस्त करेगा, और जिसकी आमद शैतान की तासीर के मुआफिक हर तरह की झूठी कुदरत और निशानों और अजीब कामों के साथ और हलाक होने वालों के लिए नारास्ती के हर तरह के धोखे के साथ होगी, इस वास्ते कि उन्होंने हक की मोहब्बत को इख्तियार ना किया जिससे उनकी निजात होती। इसी सबब से खुदा उनके पास गुमराह करने वाली तासीर भेजेगा ताकि वो झूठ को सच जाने, और जितने लोग हक का यकीन नहीं करते बल्कि नारास्ती को पसंद करते हैं वो सब सजा पाएंगे। लेकिन तुम्हारे बारे में है भाइयों, खुदावंद के प्यारो, हर वक्त खुदा का शुक्र करना हम पर फर्ज है, क्योंकि खुदा ने तुम्हें इब्तदा ही से इसलिए चुन लिया था कि रूह के जरिया से पाकीज़ा बनकर और हक पर ईमान लाकर निजात पाओ, जिसके लिए उसने तुम्हें हमारी खुशखबरी के वसीला से बुलाया ताकि तुम हमारे खुदावंद यसु मसीह का जलाल हासिल करो। बस है भाइयों, साबित कदम रहो और जिन रवायतों की तुमने हमारी जुबानी या खत के जरिया से तालीम पाई है उन पर कायम रहो। अब हमारा खुदावंद यसु मसीह खुद और हमारा बाप खुदा, जिसने हमसे मोहब्बत रखी और फजल से अबदी तसल्ली और अच्छी उम्मीद बख्शी, तुम्हारे दिलों को तसल्ली दे और हर एक नेक काम और कलाम में मजबूत करे। पुराने अहदनामा में से देखेंगे पहला सैमुएल उसका 11 बाब। तब अमूनी नाहिस चढ़ाई करके ये 20 जिलाद के मुकाबिल खैमा जन हुआ, और ये 20 के सब लोगों ने नाहिस से कहा, हमसे अहद व पैमा कर ले और हम तेरी खिदमत करेंगे। तब अमूनी नाहिस ने उनको जवाब दिया कि इस शर्त पर मैं तुमसे अहद करूंगा कि तुम सब की दहनी आंख निकाल डाली जाए और मैं उसे सब इसराइलियों के लिए जिल्लत का निशान ठहराऊं। तब ये 20 के लोगों ने इससे कहा, हमको 7 दिन की मोहलत दे ताकि हम इसराइल की सब सरहदों में कासिद भेजें। तब अगर हमारा हमायती कोई न मिले तो हम तेरे पास निकल आएंगे। और वो कासिद साउल के जिब्बा में आए और उन्होंने लोगों को ये बातें कहकर सुनाई, और सब लोग चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे। और साउल खेत से बैलों के पीछे पीछे चला आता था, और साउल ने पूछा कि इन लोगों को क्या हुआ कि रोते हैं। उन्होंने ये 20 के लोगों की बातें उसे बताई। जब साउल ने ये बातें सुनी तो खुदा की रूह उस पर जोर से नाजिल हुई और उसका गुस्सा निहायत भड़का। सो उसने एक जोड़ी बैल लेकर उनको टुकड़े टुकड़े काटा और कासदों के हाथ इसराइल की सब सरहदों में भेज दिया, और ये कहा कि जो कोई आकर साउल और सैमुएल के पीछे ना हो ले, उसके बैलों से ऐसा ही किया जाएगा। और खुदावंद का खौफ लोगों पर छा गया और वो यकतन होकर निकल आए, और उसने उनको बजक में गिना। सो बनी इसराइल 3 लाख और यहूदा के मर्द 30,000 थे। और उन्होंने उन कासिदों से जो आए थे कहा कि तुम ये 20 जिलाद के लोगों से यूं कहना कि कल धूप तेज होने के वक्त तक तुम रिहाई पाओगे। सो कासिदों ने जाकर ये 20 के लोगों को खबर दी और वो खुश हुए। तब अहले ये 20 ने कहा, कल हम तुम्हारे पास निकल आएंगे और जो कुछ तुमको अच्छा लगे हमारे साथ करना। और दूसरी सुबह को साउल ने लोगों के 3 गौल किए, और वो रात के पिछले पहर लश्कर में घुसकर अमूनियों को कत्ल करने लगे, यहाँ तक कि दिन बहुत चढ़ गया, और जो बच निकले सो ऐसे तितर बितर हो गए कि 2 आदमी भी कहीं एक साथ ना रहे। और लोग सैमुएल से कहने लगे कि किसने ये कहा था कि क्या साउल हम पर हुकूमत करेगा? उन आदमियों को लाओ ताकि हम उनको कत्ल करें। साउल ने कहा, आज के दिन हरगिज कोई मारा नहीं जाएगा, इसलिए कि खुदावंद ने इसराइल को आज के दिन रिहाई दी है। तब सैमुएल ने लोगों से कहा, आओ जिलजाल को चलें ताकि वहां सल्तनत को नए सिरे से कायम करें। तब सब लोग जिलजाल को गए और वहीं उन्होंने खुदावंद के हजूर
साउल को बादशाह बनाया। फिर उन्होंने वहां खुदावंद के आगे सलामती के ज़बीहे ज़िबा किए और वहीं साउल और सब इस्राएली मर्दों ने बड़ी खुशी मनाई। पहला शमूएल 12 बाब। तब शमूएल ने सब इस्राएलियों से कहा, देखो जो कुछ तुमने मुझसे कहा मैंने तुम्हारी एक एक बात मानी और एक बादशाह तुम्हारे ऊपर ठहराया है। और अब देखो ये बादशाह तुम्हारे आगे चलता है। मैं तो बुढ़ा हूं और मेरा सर सफेद हो गया और देखो मेरे बेटे तुम्हारे साथ हैं। मैं लड़कपन से आज तक तुम्हारे सामने ही चलता रहा हूं। मैं हाजिर हूं, सो तुम खुदावंद और उसके ममसू के आगे मेरे मुंह पर बताओ कि मैंने किसका बैल ले लिया या किसका गधा लिया, मैंने किसका हक मारा या किस पर जुल्म किया या किसके हाथ से मैंने रिश्वत ली ताकि अंधा बन जाऊं। बताओ और ये मैं तुमको वापस कर दूंगा। उन्होंने जवाब दिया, तूने हमारा हक नहीं मारा और ना हम पर जुल्म किया और ना तूने किसी के हाथ से कुछ लिया। तब उसने उनसे कहा कि खुदावंद तुम्हारा गवाह और उसका ममसू आज के दिन गवाह है कि मेरे पास तुम्हारा कुछ नहीं निकला। उन्होंने कहा वो गवाह है। फिर शमूएल लोगों से कहने लगा, वो खुदावंद ही है जिसने मूसा और हारून को मुकर्रर किया और तुम्हारे बाप दादा को मुल्क मिस्र से निकाल लाया। सो अब ठहरे रहो ताकि मैं खुदावंद के हजूर उन सब नेकियों के बारे में जो खुदावंद ने तुमसे और तुम्हारे बाप दादा से की गुफ्तगू करूं। जब याकूब मिस्र में गया और तुम्हारे बाप दादा ने खुदावंद से फरियाद की तो खुदावंद ने मूसा और हारून को भेजा जिन्होंने तुम्हारे बाप दादा को मिस्र से निकाल कर इस जगह बसाया। पर वो खुदावंद अपने खुदा को उसने उनको हसूर की फौज के सिपा सलार सिसरा के हाथ और फिलिस्तियों के हाथ और शाह मोआब के हाथ बेच डाला और वो उनसे लड़े। फिर उन्होंने खुदावंद से फरियाद की और कहा कि हमने गुनाह किया इसलिए कि हमने खुदावंद को और बालीम और अस्तारात की प्रस्तश की। पर अब तू हमको हमारे दुश्मनों के हाथ से छुड़ा तो हम तेरी प्रस्तश करेंगे। सो खुदावंद ने युरबाल और बिदान और इफ्ता और शमूएल को भेजा और तुमको तुम्हारे दुश्मनों के हाथ से जो तुम्हारी चारों तरफ थे रिहाई दी और तुम चैन से रहने लगे। और जब तुमने देखा कि बनी अमोन का बादशाह नाहिस तुम पर चढ़ आया तो तुमने मुझसे कहा कि हम पर कोई बादशाह सल्तनत करे, हालांकि खुदावंद तुम्हारा खुदा तुम्हारा बादशाह था। सो अब उस बादशाह को देखो जिसे तुमने चुन लिया और जिसके लिए तुमने दरखास्त की थी। देखो खुदावंद ने तुम पर बादशाह मुकर्रर कर दिया है। अगर तुम खुदावंद से डरते और उसकी प्रस्तश करते और उसकी बात मानते रहो और खुदावंद के हुक्म से सरकशी ना करो और वो बादशाह भी जो तुम पर सल्तनत करता है खुदावंद अपने खुदा के पैरों बने रहो तो खैर। पर अगर तुम खुदावंद की बात ना मानो बल्कि खुदावंद के हुक्म से सरकशी करो तो खुदावंद का हाथ तुम्हारे खिलाफ होगा जैसे वो तुम्हारे बाप दादा के खिलाफ होता था। सो अब तुम ठहरे रहो और इस बड़े काम को देखो जिसे खुदावंद तुम्हारी आंखों के सामने करेगा। क्या आज गेहूं काटने का दिन नहीं? मैं खुदावंद से अर्ज करूंगा कि बादल गरजे और पानी बरसे और तुम जान लोगे और देख भी लोगे कि तुमने खुदावंद के हजूर अपने लिए बादशाह मांगने से कितनी बड़ी शरारत की। चुनांचे शमूएल ने खुदावंद से अर्ज की और खुदावंद की तरफ से उसी दिन बादल गरजा और पानी बरसा। तब सब लोग खुदावंद और शमूएल से निहायत डर गए और सब लोगों ने शमूएल से कहा कि अपने खादमों के लिए खुदावंद अपने खुदा से दुआ कर कि हम मर ना जाएं, क्योंकि हमने अपने सब गुनाहों पर यह शरारत भी बढ़ा दी है कि अपने लिए एक बादशाह। शमूएल ने लोगों से कहा, खौफ ना करो, ये सब शरारत तो तुमने की है तो भी खुदावंद की पैरवी से किनारा कशी ना करो, बल्कि अपने सारे दिल से खुदावंद की प्रस्तश करो। तुम किनारा कशी ना करना वरना बातिल चीजों की पैरवी करने लगोगे जो ना फायदा पहुंचा सकती ना रिहाई दे सकती हैं, इसलिए कि वो सब बातिल हैं। क्योंकि खुदावंद अपने बड़े नाम के बायस अपने लोगों को तर्क नहीं करेगा, इसलिए कि खुदावंद को यही पसंद आया कि तुमको अपनी कौम बनाए। अब रहा मैं, सो खुदा ना करे कि तुम्हारे लिए दुआ करने से बाज आकर खुदावंद का गुनहगार ठहरूं, बल्कि मैं वही राह जो अच्छी और सीधी है तुमको बताऊंगा। फक्त इतना हो कि तुम खुदावंद से डरो और अपने सारे दिल और सच्चाई से उसकी इबादत करो, क्योंकि सोचो कि उसने तुम्हारे लिए कैसे बड़े काम किए हैं। पर अगर तुम अब भी शरारत ही करते जाओ तो तुम और तुम्हारा बादशाह दोनों के दोनों नाबूद कर दिए जाओगे। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी खास बरकत हो। आमीन।